Very good evening to all of you. May I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And whether my screen is visible to you now? Kindly Yes, sir. acknowledge. Okay. So good evening to one and all present over here. This is me, Professor Punesh Kumar Temre, and I welcome you all in this today's session where we will be discussing regarding the preparation of DBMS and where we will be discussing the topic in normalization. So particularly in yesterday's class, we have started with this particular topic and we studied the various concepts related to normalization, and the concepts were functional dependency. What exactly functional dependency is that we have studied. Why does we are going for the normalization, that also we have studied. Yes or no? So Yes, sir. what was the motive behind to go for the normalization? What was the motive? किस वजह से हम नॉर्मलाइजेशन के लिए जा रहे थे? The For reason, insertion, anomaly, deletion, anomaly, or updation anomaly. so basically we have to go for the normalization so that our database should be free from any kind of anomalies. Means insertion anomaly, deletion anomaly, and updation anomaly should not be there. This was the basic motive behind going for the normalization. Then second thing we have studied regarding the functional dependency. So what was the functional dependency? Functional dependency was, we can say that A is functionally determines B only if T1 of A is equals to T2 of A, then T1 of B is equals to T2 of B. So we have explored this particular definition in detail in yesterday's class. After that, next we have studied regarding the Armstrong axioms. So there were total 5 Armstrong axioms, and we have studied about all these axioms in yesterday's class, where we studied what is reflexive property, augmentation property, transitive property, union rule, and decomposition rule. And on the basis of this, we studied regarding the attribute closure, how to find out the attribute closure. And for that, we have studied the algorithm for attribute closure. The algorithm was like this. So everybody is aware about how to compute closure whenever any set of functional dependencies is given to us. Yes or no? Yes, sir. Yeah. तो एट्रीब्यूट क्लोजर हमने देखा है. एट्रीब्यूट क्लोजर के बाद देन वी हैव स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ सुपर की एंड कैंडिडेट की. तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की? क्या डिफरेंस होता है सुपर की और कैंडिडेट की में? व्हाट इज द डिफरेंस? यस सर, ध्यान. सुपर की मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स मतलब वो डिटरमाइन कर सकता है, बट एंड कैंडिडेट की मतलब वो सबसे मिनिमल होता है. नो, जस्ट लिसन. सुपर की एंड कैंडिडेट की बोथ द थिंग्स आर कीज. किसी भी चीज को की बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन करना ही चाहिए. गेटिंग इट? व्हेन एनी एट्रीब्यूट इज सेड टू बी की, any attribute or a set of attribute is said to be key only if that set of attribute or attribute is capable of determining all the attributes of a relation. यानी हमारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स अगर कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट डिराइव कर सकता है तो उसको हम की कहेंगे. तो फिर सुपर की क्या? तो सुपर की का मतलब है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट विच कैन डिराइव all the attributes of a relation. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर की क्या होता है. सुपर की मींस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which uniquely determines all the attribute of a table. फिर कैंडिडेट की क्या? तो कैंडिडेट की का मतलब होगा सेम चीज, यानी सेम की हमको बनाना है बट बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव कैंडिडेट की एज सेट ऑफ minimal attributes which uniquely determine all the attributes of a table. And regarding this, in yesterday's class we have discussed regarding two problems. This was the exercise problem where we have studied how to compute super key and how to compute candidate key. And then we have studied one problem which was asked in GATE 2006, how to find out the candidate key. Now why I am focusing upon all these things? Basically मैं focus इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले टॉपिक which is called as normalization. So in today's class we have to go for the normalization.
अब गेट एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन का सवाल कैसे पूछा जाता है, जरा ध्यान दो। आपको एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, मीन्स वन रिलेशन विल बी गिवन टू यू। तो हियर वन रिलेशन विल बी गिवन टू यू, रिलेशन आर। अब ये रिलेशन कौन से एट्रीब्यूट्स पे, वो एट्रीब्यूट्स आपको दिए हुए हो सकते हैं। जैसे 4 एट्रीब्यूट्स अगर मैंने लिया तो 4 एट्रीब्यूट्स विल बी गिवन टू यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आल्सो गिवन टू यू। कि जैसे ये बी को डिटरमाइन कर सकता है, बी सी और डी को डिटरमाइन कर सकता है, और सी ए को डिटरमाइन कर सकता है। इस तरह का सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ रहेगा। एंड देन it might get asked to you, whatever the relation is given to you with respect to this set of functional dependency, then they may ask you which particular normal form is followed by this particular database, या फिर इस डेटाबेस का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, ये आप आइडेंटिफाई करो। अब अगर आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। यस और नो? हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या अलग अलग लेवल से, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है। तो सपोज हाईएस्ट लेवल अगर मेरा लेवल 4 है तो डेटाबेस को लेवल 4 में है ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इन टुडेज क्लास वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन and how to identify whenever any database is given to us whether that particular database is in that particular normal form or not। तो ये सारी चीजें हमें करनी। तो अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए नॉर्मल फॉर्म कौन सा है अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये सारी चीजों के लिए आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करते आना चाहिए। जिसको कैंडिडेट की फाइंड आउट करते नहीं आएगा वो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? अगर आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करते नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मलाइजेशन का लेवल कौन सा है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है उन लोगों को कल के क्लास की रिकॉर्डिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास होने के बाद जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो लोग मुझे मेल करेंगे, और मेल करते वक्त आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा उस व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर एज माय व्हाट्सएप नंबर 9326278763। जिनको भी कल के क्लास की रिकॉर्डिंग इमीडिएटली चाहिए, those persons, those candidates can call me on this particular number। कॉल करने से अच्छा व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और व्हाट्सएप मैसेज करते वक्त आपका नाम और आपका ईमेल आईडी भेजेंगे। Once I will get your email ID, then I will forward that recording to you. Getting it? Kindly acknowledge. Yes, sir. Yeah. क्योंकि आज की क्लास समझने के लिए आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करते आना बहुत जरूरी है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करते आए डायरेक्टली, उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर नहीं समझेगा तो कल की क्लास आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है वो तो मैंने डिस्कस किया कि आपको एक डेटाबेस दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करो। और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग फॉर्म कौन से हैं, किस फॉर्म को हम हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हियर particularly whenever we are talking about a normalization, so there are total 6 नॉर्मल फॉर्म्स। वैसे 6 नॉर्मल फॉर्म है, बट गेट एग्जाम में हमारे लिए जो काम की चीज है वो 4 ही नॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहला है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड वन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड वन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड फोर्थ वन इज बीसीएनएफ। बीसीएनएफ के बाद फिर आपका फोर्थ एनएफ आता है, फिफ्थ एनएफ आता है। इस तरह से टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म होते हैं। बट प्रीवियस गेट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो गेट क्वेश्चन के पेपर के एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि बीसीएनएफ के ऊपर की लेवल के नॉर्मल फॉर्म गेट एग्जाम में नहीं पूछते हैं। एंड दैट्स व्हाई हियर इन आवर क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस 4 नॉर्मल फॉर्म ओनली, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ। सेकंड, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में काफी सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं।
तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डीबीएमएस जो होता है वो किस लेवल का नॉर्मल फॉर्म फॉलो करता है। तो आप फाइंड आउट करेंगे मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी अभी तक जितने सॉफ्टवेयर बने होंगे लगभग उनमें से 99% सॉफ्टवेयर जो है ये अप टू 3rd ENF ही होते हैं, यानी 3 ENF तक के नॉर्मल फॉर्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकली अगर हम 3 ENF तक जा रहे हैं तो दैट इज ओके, प्रैक्टिकली 3 ENF तक के ओके हैं। BCNF थ्योरेटिकली है, BCNF के आगे भी नॉर्मल फॉर्म्स है, वो भी थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो प्रैक्टिकली 3 ENF तक के हम डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर हम 3 ENF के ऊपर अगर नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं तो देन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज जो हमें पे करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली 3 ENF के ऊपर नॉर्मलाइजेशन लेवल फॉलो नहीं करते। तो हियर वी हैव टू फॉरगेट अबाउट द इंडस्ट्री, जस्ट ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था। बट हियर particularly in DBMS there are total up to 6 normal form और उसमें से 1, 2, 3 and BCNF, यहाँ तक कि हमको गेट एग्जाम में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। and that's why we have to understand about all the normal forms one by one in a detail. तो here we have to go for first normal form. तो first normal form क्या है? तो in a table every attribute is atomic. In a table, if every attribute is atomic, then my database is said to be in a first normal form. अब every attribute atomic है, atomic का मतलब क्या होता है? तो every attribute atomic है, इसका मतलब होता है no multi-valued attribute will be there, no multi-valued attribute should be there, कोई multi-valued attribute नहीं होना चाहिए, या फिर no composite attribute should be there। यानी अगर आपके डेटाबेस में कोई मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है और कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है तो फिर हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। तो नो मल्टी वैल्यूड और नो कंपोजिट, इन्हीं को कॉम्बिनेशन में जनरली हम एटॉमिक कहते हैं। तो ये every attribute is in atomic form. If every attribute is in atomic form, then database is said to be in a first normal form. तो अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है ये वाली चीज भी हम समझ लेते हैं। तो दैट्स व्हाई अ डेटाबेस इज सेड टू बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओनली if every attribute is atomic. तो there should not be no multi valued attribute and there should not be no composite attribute. तो इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल, जैसे कि आप ये एक टेबल देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल में हमने डेटा मेंटेन करके रखा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम। कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहा है वो कोर्स नेम की वैल्यूज हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट वाले टपल में देखो, फर्स्ट वाले टपल में दिस इज व्हाट माय टपल 1। तो इन दिस टपल देयर आर 3 एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, सेकंड एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम और थर्ड एट्रीब्यूट है कोर्स नेम। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी का एक ही वैल्यू है दैट इज 1, स्टूडेंट नेम का भी एक ही वैल्यू है दैट इज राजू, बट कोर्स नेम का अगर देखोगे तो देयर आर 2 वैल्यूज and that's why here CNAME is multi-valued attribute. Here CNAME is multi-valued attribute. Why? Because in a tuple, एक single tuple में CNAME की वैल्यू कभी C रह सकती है, कभी C++ भी रह सकती है। Means at a time two values are possessed by this particular attribute CNAME, and that's why here we can say that our database contain one attribute which is called as course name, that is CNAME. It is a multi-valued attribute and that's why this particular table is not in first NF. You got it? Yes or no? Hello? Yes, sir. तो मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट समझे ना। मल्टी वैल्यूड का मतलब है कि अगर मेरे डेटाबेस में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टीपल वैल्यूज को सपोर्ट करता है, मल्टीपल वैल्यूज उसकी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट का नाम एक ही नाम हो सकता है राजू, मैंने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम एक ही रखा है राजू, लेकिन कोर्स के नाम दो लिख के रखे हमने C and C++, and that's why this particular table is not in first NF. This is about the multi-value. Now next thing we have to understand that is regarding the composite. तो अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड टेबल।
सेकंड टेबल में फिर से हमने डेटाबेस मेंटेन करके रखा है। एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, सेकंड वन इज स्टूडेंट नेम एंड थर्ड वन इज एड्रेस। तो हर स्टूडेंट का आईडी, हर स्टूडेंट का नाम और उसका एड्रेस, इस तरह का एक टपल बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट आईडी को फर्दर डिवाइड कर पा रहे हो क्या? नो, स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड क्योंकि ये सिंगल वैल्यू। स्टूडेंट नेम की बात अगर करोगे तो राजू को फर्दर में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नेम मैंने ओनली उसका फर्स्ट नेम ही लिखा है, ओनली फर्स्ट नेम इज देयर। हाँ, मैंने स्टूडेंट नेम को अगर इस तरीके से लिखा होता, स्टूडेंट नेम विल कंसिस्ट ऑफ इट्स फर्स्ट नेम, देन सेकंड मिडल नेम and then third as surname. So now here we can say that student name is a composite attribute which will consist of three different things, that is first name, middle name and surname. तब ये composite attribute होता है, लेकिन यहाँ पे student name को हमने first name से identify करके रखा हुआ, and that's why this is not a composite attribute. But if you will go for next attribute which is called as address, तो आप address attribute को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस एट्रीब्यूट जो है ये कहीं ना कहीं कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों कंपोजिट एट्रीब्यूट है? क्योंकि एड्रेस को अगर आप केयरफुली देखोगे तो एड्रेस कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे पहला है प्लॉट नंबर, ये वाली चीज अगर करस्पॉन्ड कर रहा होगा प्लॉट नंबर। सेकंड वाली चीज करस्पॉन्ड अगर कर रहा होगा स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, एंड थर्ड वन इज सपोज सिटी, तो दिस इज सिटी। So now address consists of three things: plot number, street number and city. So here address is a attribute which is called as composite attribute. तो यहाँ देखिए सेकंड वाले टेबल में एड्रेस एट्रीब्यूट आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, फर्स्ट वाले टेबल में कोर्स नेम दैट इज सी नेम एट्रीब्यूट आपका मल्टी वैल्यूड है, एंड ड्यू टू विच बोथ द टेबल्स आर नॉट इन फर्स्ट एनएफ। यहाँ पे आपका डेटाबेस फर्स्ट एनएफ में नहीं है। यहाँ तक समझे आपको? हाँ ना? यस सर। अब अगर हमें डेटाबेस को फर्स्ट एनएफ में अगर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो डेटाबेस को फर्स्ट एनएफ में अगर लेके जाना है तो नो मल्टी वैल्यूड चीजें अगर है तो वहां पे हमें नो मल्टी वैल्यूड करना पड़ेगा। मींस कोर्स नेम जो था ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, तो ये कहीं ना कहीं मल्टी वैल्यूड को हमें सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड में जब हम कन्वर्ट करते तो हम क्या करेंगे? हियर वी हैव टू गो फॉर एडिशन ऑफ रोज। अभी हम रोज ऐड करेंगे, रोज ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? देखिए कोर्स नेम की एक वैल्यू सी है और कोर्स नेम की सेकंड वैल्यू सी प्लस प्लस है, इसलिए एक टपल हम सी के लिए लिखेंगे और दूसरा टपल हम सी प्लस प्लस के लिए लिखेंगे। तो एंट्री कैसी होंगी? 1 राजू सी, सेकेंड एंट्री होगी 1 राजू सी प्लस प्लस, थर्ड 2 रानी सी, देन 2 रानी जावा, थर्ड 3 राकेश जावा। अब इस पूरी टेबल को देखो, यहाँ पे आपको कोई तो भी एट्रीब्यूट ऐसा दिख रहा है कि जिसकी मल्टीपल वैल्यूज है? नो, लेकिन आपको एडिशनल रो बनाने पड़े। और एडिशनल रो आपके कौन से है? यहाँ देखिए आपको एडिशनल रो एक बनाना पड़ा। पहली वाली टेबल में ओनली 3 रोज थे, लेकिन यहाँ पे एडिशनल रोज आपको बनाने पड़े, और एडिशनल रो बनाने की वजह से टोटल आपके 5 रोज हो गए। So whenever you want to eliminate multi-valued attribute, you have to go for addition of rows. Are you getting it? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. And now here we can say that our database is in first n. अभी हमारा डेटाबेस यहाँ पे फर्स्ट एन में, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है, आप देख सकते हैं। 1 राजू सी, 1 राजू सी प्लस प्लस, 1 रानी सी, 2 रानी सी, 2 रानी जावा। तो वी हैव एडेड 2 रोज ओवर हियर, ये एक एडिशनल रो है और एक एडिशनल रो है। तो इन दिस वे अभी हमारा डेटाबेस जो है वो नो मल्टी वैल्यूड टाइप का है। सेकंड वाले टेबल की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वाले टेबल में कंपोजिट एट्रीब्यूट थे, और कंपोजिट एट्रीब्यूट जब होते हैं तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एडिशन ऑफ कॉलम करते हैं। हियर वी हैव टू गो फॉर एडिशन ऑफ कॉलम। यहाँ पे हमने क्या किया था? फर्स्ट वाले इसमें मींस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर रहेंगे तो हियर वी हैव टू गो फॉर एडिशन ऑफ रोज, वी हैव टू ऐड द रोज, हियर वी हैव टू ऐड द कॉलम्स। तो कॉलम ऐड करेंगे तो कैसे? पहला कॉलम यस आईडी, सिंगल कॉलम ही रहेगा, सेकंड यस नेम,
लेकिन अभी एड्रेस जो था, ये एड्रेस को स्प्लिट अप करके हम लिखेंगे, तो एड्रेस विल कंसिस्ट ऑफ प्लॉट नंबर, तो प्लॉट नंबर, देन स्ट्रीट नंबर, तो स्ट्रीट नंबर, एंड देन सिटी टू सिटी। और अभी ये जो मेरा फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल की एंट्री हम कुछ इस तरीके से करेंगे, क्या, स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट नेम राजू, प्लॉट नंबर 22, स्ट्रीट नंबर ABC, एंड सिटी बॉम्बे। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से। तो देखिए अभी ये आपका पूरा टेबल इस तरीके से, हाउ मेनी टोटल कॉलम्स यू हैव, तो अभी आपके पास टोटल कॉलम्स है 5। इनिशियली कितने थे बेटा आपके पास? 3। तो क्या स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, इनमें से कोई तो भी एट्रीब्यूट अभी कॉम्पोसाइट है क्या? नो। तो हियर वी कैन से दैट नो कॉम्पोसाइट एट्रीब्यूट इज देयर। So in this way, whenever there will be multi-value attribute, we have to go for addition of rows. Whenever there will be composite attribute, we have to go for addition of column. So you got it? Yes or no? हाँ ना? And that's why. Yes, sir. And that's why आपका सेकंड वाला टेबल जो रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा, जो कि अभी प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नेम एंड सिटी इस तरीके से हमने कॉलम ऐड किए थे। तो अभी हमारा डेटाबेस जो है ये पूरा का पूरा इनफ, फर्स्ट इनफ में। क्यों? क्योंकि नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज देयर एंड नो कंपोसाइट। नो मल्टी वैल्यूड, नो कंपोसाइट, इसी को हम क्या कहते हैं सिंगल वर्ड में? एटॉमिक। तो आपको याद रहेगा व्हेन डेटाबेस इज सेट टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपको प्लेसमेंट के वक्त अगर किसी ने पूछा HR इंटरव्यू में, व्हेन अ डेटाबेस इज सेट टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो आपको आएगा बताते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. So when database is set to be in first normal form, database is set to be in first normal form only if all the attributes are atomic. It means that no attribute should be multi-valued and no attribute should be composite. तो I think यहाँ पे आपका first normal form clear हो गया होगा, and ये first normal form is covered. Now we have to go for second normal form. तो क्या हम second normal form के लिए जाए? Yes, sir. Okay. So now we have to go for second normal form. तो here we have second normal form. अब second normal form में हम करते हैं, तो second normal form के लिए आपको समझना है कि डेटाबेस को second normal form में ऐसा हम कब कहेंगे। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली अगर कोई 12th में है, कोई अगर 12th स्टैंडर्ड में है, तो उसने 10th पास किया होगा क्या? Yes, sir. सही में? हाँ सर, 10th के बाद ही 12th में आया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। अगर आपका डेटाबेस सेकंड एनएफ में, इसका मतलब वो फर्स्ट एनएफ में होगा ही होगा। आर यू गेटिंग इट? ये चीज इम्प्लिसिट रहेगी। यानी अगर आपका डेटाबेस 3 एनएफ में है, इसका मतलब वो 2 एनएफ में भी है और 1 एनएफ में भी है। जब तक 1 एनएफ और 2 एनएफ नहीं होंगे, डेटाबेस 3 एनएफ में नहीं रह सकता। तो अगर आपको याद रखना है ऐसा, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म अगर आपका कोई डेटाबेस अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उससे लोवेस्ट नॉर्मल फॉर्म में वो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। यानी अगर डेटाबेस 3 एनएफ में, यानी ऑटोमेटिकली वो 2 एनएफ और 1 एनएफ में रहेगा। और अगर आपका डेटाबेस BC एनएफ में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी 3 एनएफ में भी है, 2 एनएफ में भी और 1 एनएफ में भी है। सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये 10th और 12th का एग्जांपल आपको दिया था ताकि आपको याद रह सके। तो अभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट एनएफ में तो वो रहेगा ही रहेगा, ये इम्प्लिसिट है। इसके बाद का नेक्स्ट है, a table is into NF if there is no partial dependency. ध्यान देंगे बेटा सब लोग। A table means a database. A database is said to be in a second NF if there is no partial dependency. अब एक और टेक्निकल टर्म हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? ध्यान दो, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? तो x डिराइव्स टू ये x डिटरमाइन ये डिपेंडेंसी को हम पार्शियल डिपेंडेंसी तब कह सकते हैं इफ X is a proper subset. X is a proper subset of some candidate key. देखिए यहाँ पे X is a proper subset of some candidate key and A is non-prime or non-key attribute. देखिए अभी ये तो ये टेक्निकल टर्म थी, उसके चक्कर में सेकंड टेक्निकल टर्म आ गया, बाद में थर्ड टेक्निकल टर्म आ गया और बाद में चौथा टेक्निकल टर्म आ गया। तो ये सारे टर्म्स हमको 1 by 1 समझना है। इतना अगर आपको समझ गया तो फिर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, X डिराइव्स टू ये, इस तरह की अगर कोई डिपेंडेंसी है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं।
तो अभी मेरे पास डेटाबेस दिया है सपोज आर, ठीक है, मेरे पास डेटाबेस दिया है आर और उसमें 3 सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, एक्स डिराइव्स टू ए, बाद में ए डिराइव्स टू एक्स और बाद में होगा बी डिराइव्स टू ए। इस तरह से 3 डिपेंडेंसी दी है और मुझे बोला है दिस इज नॉट अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नाउ इट इज आस्क्ड टू मी check whether given database is in 2NF or not. तो what I have to do? Given database 2NF में है या नहीं, अगर मुझे चेक करना है तो सबसे पहले मुझे पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी लेना पड़ेगा, कौन सा, x डिराइव्स टू ए। चेक करना पड़ेगा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं, पता चला ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे a डिराइव्स टू x, चेक करेंगे ये पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं, पता चला ये भी नहीं है। और थर्ड डिपेंडेंसी लिया b डिराइव्स टू ए, चेक किया ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो मुझे बताइए मेरे डेटाबेस में कोई डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या? No, sir. तीनों डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। इट मींस दैट माय डेटाबेस इज फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी, माय डेटाबेस इज फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर मेरा डेटाबेस फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी है इसका मतलब वो सेकंड एनएफ में रहेगा। तो डेटाबेस सेकंड एनएफ में है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए, जितनी डिपेंडेंसीज है वो डिपेंडेंसी पार्शियल है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्शियल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई आपको करते आना चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो किसी भी डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी कब बोलते हैं उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन को अभी हम समझ लेते हैं एंड वंस यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, फिर बाद में आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन डेटाबेस सेकंड एनएफ में है या नहीं। तो वेरी फर्स्ट जो भी डिपेंडेंसी दिया हुआ रहेगा वो डिपेंडेंसी में दो ये वाला फॉर्मेट रहेगा, x डिराइव्स टू ए। x का मतलब है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और ये का मतलब है राइट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है क्योंकि x को लेना है। x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सम कैंडिडेट की। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ सम कैंडिडेट की है या नहीं, दिस इज व्हाट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है या नहीं अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए, अरे क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए, कैंडिडेट की, क्योंकि आपको कैंडिडेट की डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको क्या दिया हुआ रहेगा, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर दिए हैं तो वहां से कैंडिडेट की कैसे बनाना ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने कल की क्लास में पूरा टाइम डिवोट किया था, when a set of functional dependency will be given to me then how to find out candidate key, got it? हाँ या ना? Yes, sir. सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर दिया है तो हाउ टू फाइंड आउट कैंडिडेट की। तो आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करते आ जाएगा। Yes, sir. ओके तो अभी आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, अभी आपने सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, अभी आपने वहां से कैंडिडेट की फाइंड आउट किया। जरा देखो आपका कैंडिडेट की है सपोज ये सी, कैंडिडेट की हो क्या हो गया ये सी, ये सी इज योर कैंडिडेट की। तो ये सी अगर आपका कैंडिडेट की है तो ये सी के प्रॉपर सबसेट क्या होंगे ये अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ बोला है इफ x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सम कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की तो आपको दिया है, तो कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जरा देखिए एसी के प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, तो एसी के प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं वो सारे सेट जिनकी लेंथ एसी के लेंथ से कम है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ क्या है बेटा, व्हाट इज द साइज ऑफ एसी 2, ए एंड सी, एसी का साइज है 2। तो आपको क्या करना है 2 से कम साइज के सारे सेट बनाने हैं जो कि एसी के बन सकते हैं। तो एसी के 2 साइज से कम वाले सेट कौन से बनेंगे बताओ तो, एक बनेगा फाइव, एक बनेगा ए और एक बनेगा सी, गेटिंग इट, एक बनेगा फाइव यानी नील, एक बनेगा ए, एक बनेगा सी। ओनली ये क्यों, क्योंकि इसका साइज है 0, इसका साइज है 1, इसका साइज है 2 और 2 साइज का जो सेट रहेगा वो एसी रहेगा, लेकिन 2 साइज का सेट नहीं लेना है। वी हैव टू टेक ऑल द सेट विच आर लेस देन साइज ऑफ अ कैंडिडेट की। तो साइज ऑफ अ कैंडिडेट की 2 है तो 2 से कम कौन से होंगे 1, इसलिए 0 साइज का सेट या फिर 1 साइज का सेट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 0 साइज का
एक सेट है, दैट इज 5, और वन साइज के दो सेट बन सकते हैं। कौन से? वन साइज का सेकंड सेट, जो फर्स्ट सेट जो है ये, और दूसरा सेट एसी। तो एसी के प्रॉपर सबसेट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो एसी के प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं आइदर ये या फिर आइदर सी। तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अगर ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, ये डी राइज टू बीसी, और मेरा कैंडिडेट की अगर एसी है, तो ये डी राइज टू बीसी का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया ये। तो वेदर ये इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एसी, यस और नो? Yes. यस। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो ये एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सम कैंडिडेट की, ये चेक करना। एंड बोला, इसका मतलब क्या है, सेकंड वाली कंडीशन भी साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, साथ साथ राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड यानी क्या, ए। यहाँ देखिए एक्स डिराइव्स टू ए में राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कैसा होना चाहिए, राइट हैंड साइड आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है ये भी समझ, जितने एट्रीब्यूट्स आपके पास है, आपके पास जितने एट्रीब्यूट्स है, सपोज मेरे पास कोई एक रिलेशन दिया है, तो ये रिलेशन है ए बी सी डी। तो हाउ मेनी टोटल एट्रीब्यूट्स आई एम हैविंग, 4। तो ये 4 का बाइफर्केशन ऐसा हो सकता है, प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब प्राइम एट्रीब्यूट यानी कौन से, प्राइम एट्रीब्यूट यानी वो सारे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की बनाने के लिए काम में आ रहे, ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर पार्टिसिपेशन इन फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट की। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स सारे बचे हुए। तो मान के चलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, एक रिलेशन दिया है वो और एबीसीडी, और यहाँ से हमारा कैंडिडेट की जो बन रहा है वो है एसी। एसी इज द ओनली कैंडिडेट की। तो एसी अगर कैंडिडेट की है तो कैंडिडेट की फॉर्मेशन में कितने एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमॉन्ग एबीसीडी, 2 एट्रीब्यूट्स। कौन से, ए एंड सी, और बाकी बचे हुए एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, बी एंड डी। तो हियर आई कैन से दैट प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए एंड सी and non-prime attributes are B and D. Are you getting it? हाँ या ना? Yes, sir. Okay, means we can also say that non-participating attributes, not participating attributes. Very good, correct. Your understanding is clear. All the attributes which are participating in the formation of candidate key, all are called as prime attributes, and all the remaining attributes are said to be non-prime attributes. Is it clear? And now here I have given one functional dependency, कौन सा, x derives to e। तो इसमें मेरे दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। पहला x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। एंड राइट हैंड साइड कैसा होना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर मेरे पास कोई पार्शियल डिपेंडेंसी दिया, कोई डिपेंडेंसी दिया हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, सपोज ये भी derives to CD, suppose such kind of dependency I have given. So what I have to check? I have to check whether left hand side is a proper subset of candidate key, and whatever the attributes contained on right hand side, all those are non-prime attributes. If both the condition will get fulfilled simultaneously, then and then only I can say that X derives to A. This is what a partial dependency. Got it? हाँ या ना? Yes, sir. अब यही चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिनको पूरा नहीं समझा होगा डोंट वरी, एक एग्जांपल के थ्रू आपको आराम से समझ में आएगा। तो हियर वी हैव टू गो विथ वन एग्जांपल, एंड एग्जांपल इज गिवन दैट रिलेशन is with 4 attributes A, B, C, D, and set of functional dependencies are A derives to B and C derives to D. And now we have to check whether the given relation is into NF or not. आपका given जो database है, ये database second NF में है या नहीं, that we have to check. तो आप लोग नोट कर रहे हैं ना सारी चीजें, हाँ या ना? यस सर। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, और नोट करके अगर हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे वैसे बताइए, आप सिग्नल दीजिए। Done, sir. Okay. So now here we have total 4 attributes A, B, C, D, and functional dependencies are A derives B and C derives D. And on the basis of this, very first, सबसे पहला काम, very first aim is
to calculate prime attributes and non-prime attributes. What we have to do? We have to compute prime attributes and non-prime attributes. और prime attributes और non-prime attributes identify करने के लिए हमें candidate की बनाना पड़ेगा. And therefore here very first we have to go for to compute all candidate keys. Here we have to go for computation of all candidate keys. अब मैंने आपको candidate keys कैसे बनाना कल पढ़ाया था. जितने लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं बनाओ और चैट बॉक्स में आंसर पोस्ट करो, कोई बताएगा नहीं. प्लीज पोस्ट योर आंसर टू चैट बॉक्स. ओनली 2 functional dependencies are given to you, A derives B and C derives D. ओके शुभम का आंसर आ गया. शुभम दिगोले, कांग्रेचुलेशन बेटा. इशिता शर्मा, गुड, करेक्ट आंसर इशिता. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नंती, नंती, शुभम, कनुजिया, सोहम, तन्वी, सिद्धि ने आज ज्वाइन किया इसलिए आई थिंक उनको नहीं पता होगा हाउ टू कंप्यूट. और अमनदीप भी आज ही ज्वाइन किए हैं इसलिए उनको भी पता नहीं होगा. लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्ञानती का आंसर आना चाहिए. ज्ञानती, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर. फिर आंसर क्यों नहीं वो पोस्ट हो रहा है? मेरे साइड पे थोड़ा नॉइस था. हाँ, तो आपको कैलकुलेट करना है कैंडिडेट की. करोगे आप? ओके सर शुभम. हाँ, शुभम कनुजिया का आंसर आ गया. वेरी गुड शुभम, योर आंसर इज करेक्ट. तन्वी, आप भी एब्सेंट थे. तो लिसन, हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज. तो कभी भी कैंडिडेट की जब आपको कैलकुलेट करना होता है तो कैंडिडेट की कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यानी नेसेसरी एट्रीब्यूट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है. यू हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेसेसरी एट्रीब्यूट्स, या उनको इसेंशियल एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं. तो आपके पास टोटल एट्रीब्यूट्स है 4, A, B, C और D. देखिए ये रिलेशन में दिए 4 एट्रीब्यूट्स. इनमें से ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है जो आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में आ रहे हैं वो देख लो. कौन आ रहा है? बी, यानी बी को कोई ना कोई डिटरमिन कर रहा है इसलिए नेसेसरी नहीं है. और कौन आ रहा है? डी, इसलिए डी को भी नेसेसरी एट्रीब्यूट हम नहीं कह सकते. बट ये एंड सी आर द एट्रीब्यूट्स जिनको डिटरमिन करने वाला कोई नहीं है. एंड दैट्स व्हाई योर नेसेसरी एट्रीब्यूट्स आर एसी. तो आपको सबसे पहले एसी क्लोजर कैलकुलेट करना होगा. अब एसी क्लोजर कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कंप्यूट क्लोजर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा. और यही मैंने कल की क्लास में समझा था. तो एसी क्लोजर कैलकुलेट करते वक्त हमेशा कोई भी चीज खुद को जरूर कैलकुलेट करती है. यानी एसी का क्लोजर एसी हमेशा ही रहेगा, ये चीज याद रखना. एसी का क्लोजर हमेशा एसी रहेगा, इसलिए एसी क्लोजर में एसी जरूर रहेगा. अब आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी ले लो. सबसे पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सा? ये डिराइव्स बी. तो ये डिराइव्स बी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके क्लोजर में है? ये आपका एक्चुअली क्लोजर है जो मैंने ब्रेसेस में लिखा है. तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके क्लोजर में है. तो आप राइट हैंड साइड को भी वहां लिख दो, इसलिए हमने यहाँ बी को लिख दिया. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का काम खत्म. सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सी डिराइव टी. अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके क्लोजर में है? हाँ, तो आप राइट हैंड साइड को भी लिख दो. तो हमने राइट हैंड साइड को भी लिख दिया. क्या एसी के क्लोजर में आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं? हाँ, इसलिए एसी विल बी द कैंडिडेट की. इसलिए हमने यहाँ पे कैंडिडेट की जो लिखा वो होगा एसी. एसी के अलावा दूसरा और कोई चीज कैंडिडेट की नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि नेसेसरी 2 ही एट्रीब्यूट्स थे, वो तो आपने ले लिए. इसके यानी किसी भी की को बनाने के लिए 2 एट्रीब्यूट तो लगना ही लगना है. तो फिर तीसरी की जो बनेगी इसके बाद वो सपोर्टिंग वाले की रहेगी. यानी एक तो आप बी को जोड़ सकते हैं इसके साथ, नहीं तो फिर डी को जोड़ सकते हैं. तो डी ए सी एंड बी ए सी
ये वाले कीज भी एबीसीडी को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सुपर कीज होंगे कैंडिडेट की। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके पास एक ही कैंडिडेट की है और वो कौन सी है, एसी। तो हियर एसी इज द कैंडिडेट की। इज इट क्लियर टू यू? हाँ या ना? अरे समझा क्या? यस सर। तो यहाँ पे आपके पास आपका एक ही कैंडिडेट की है, दैट इज एसी। तो अगर आपने कैंडिडेट की फाइंड आउट कर दिया तो ऐसा समझ लो इस प्रॉब्लम को आपने आधा सॉल्व कर ही दिया। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू मस्ट नो हाउ टू कंप्यूट द कैंडिडेट की। इसलिए हमने कल का क्लास पूरा कैंडिडेट की कैसे कंप्यूट करते हैं इस चीज के लिए डिवोट किया था। आफ्टर दैट अभी आपका कैंडिडेट की तो बन गया, अब यहाँ पे एक ही कैंडिडेट की बन रहा है। मान के चलो आपकी प्रॉब्लम में मल्टीपल कैंडिडेट की अगर होंगे तो आपको पूरे के पूरे कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक ही है इसलिए एक ही मिलेगा। अगर किसी प्रॉब्लम में 3 रहेंगे तो आपको तीनों के तीनों बनाने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए कैंडिडेट की के पार्टिसिपेशन में कैंडिडेट की कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। तो आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? ए एंड सी। और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स कौन से आपके बी एंड डी। तो बी और डी को हम बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये समझा बेटा? दिस इज द फर्स्ट थिंग। यानी सबसे पहले आपने कैंडिडेट की कंप्यूट किया, कैंडिडेट की एक ही मिला आपका एसी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने कैलकुलेट किया विच एट्रीब्यूट्स आर प्राइम एंड विच एट्रीब्यूट्स आर नॉन प्राइम। तो आपको पता चला ए एंड सी आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स है एंड बी एंड डी आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। यहाँ तक समझा क्या? यस सर। यस सर। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, अगर आपके कैंडिडेट की एसी है तो प्रॉपर सबसेट क्या क्या होंगे कैंडिडेट की के? प्रॉपर सबसेट्स ऑफ नल कैंडिडेट, ए एंड सी। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ कैंडिडेट की जो होंगे वो होंगे नल यानी 5 ए एंड सी। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब पहला डिपेंडेंसी लेते हैं, कौन सा? ये डिराइव्स टू बी, ए डिराइव्स टू बी, ये पहला डिपेंडेंसी लिया। अब इस डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड, इस डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है? हाँ या ना? यस ये इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एसी, यस और नो? यस यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब राइट हैंड साइड की कंडीशन चेक करेंगे, वेदर बी इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यस whether right hand side is a non-prime attribute. Yes, it means that both the conditions are simultaneously true. Yes or no? X is a proper subset of some candidate key and Y is a non-prime attribute. Both the conditions are true. दोनों कंडीशन अगर ट्रू है इसका मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगा या नहीं होगा? If both the conditions are true, it means that Yes, sir. given dependency is partial dependency or not. So this is what a partial dependency है। तो ये डिपेंडेंसी जो है ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है। यहाँ तक समझा? और अभी अगर आपके डेटाबेस में शायद आप लोगों को आवाज कट के आ रही होगी, वॉइस ब्रेक हुआ था मेरा, हाँ ना? हेलो? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, जस्ट अ मिनट। मैं एक काम करता हूँ, राउटर को बाहर रखता हूँ, देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी आ रही के बराबर? ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं राउटर बाहर रख देता हूँ। अभी आवाज आ रही क्या बराबर? हाँ ना? Yes, sir. यस सर। वो नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहला डिपेंडेंसी पार्शियल है या नहीं है? तो फर्स्ट डिपेंडेंसी इज पार्शियल। अब देखिए अगर मेरे डेटाबेस में एक भी डिपेंडेंसी अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है इसका मतलब मेरा डेटाबेस सेकंड एनएफ में नहीं है। तो ये डिराइव्स टू बी इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी और ये डिराइव्स टू बी इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, देयरफॉर टेबल इज नॉट इन टू एनएफ। मैं यहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक भी डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये डिराइव्स टू बी, ये डिपेंडेंसी पार्शियल है इसलिए पूरा का पूरा टेबल ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है।
बट अभी हम एक और काम करते हैं, हमें पता तो चल गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, आपको चेक करना है सेकंड डिपेंडेंसी पार्शियल है या नहीं। प्लीज गो फॉर इट। सी डिराइव्स टू डी या डिपेंडेंसी पार्शियल है या नहीं, ये आप चेक करें। करो तो जल्दी। It's partial dependency. Okay, good. Shubham Kanuja and Shubham Digole both have answered this question. What about others? Aman, Amandeep, बेटा अभी तो आप चेक कर सकते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी वाली कंडीशन आपकी आज की है। यस, इट्स अ पार्शियल डिपेंडेंसी। नाम लेने की जरूरत है क्या? बाकी लोग भी नहीं बताएंगे क्या? सोहम, तन्वी, यस सर, पार्शियल है। पार्शियल है बेटा, तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट करते जाइए। सिद्धि, सिद्धि घाटे, पार्शियल है या नहीं है? आप चैट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। मेरे को आंसर आया है शुभम कनुजिया की तरफ से, सेकंड शुभम दिगोड़े की तरफ से, अमनदीप, तन्वी, नांती, इशिता। ओके, यस, इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। चलो एक बार चेक करते पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है क्या प्रॉपर सबसेट है। तो C इज अ प्रॉपर सबसेट, देयरफॉर इट इज यस, एंड D इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यस। और जब दोनों कंडीशन यस है, इसका मतलब ये वाला डिपेंडेंसी भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब यहाँ तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी अगर रहा तो डेटाबेस सेकंड एनफ में नहीं रहेगा। यहाँ तो दोनों के दोनों डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो डेफिनेटली हमारा डेटाबेस जो है ये सेकंड एनफ में नहीं है। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Okay, we will go for one more example. This is what problem number 3. This is exercise problem. We have given one relation, and then we have to find out whether with that relation our database is in second normal form or not. So relation R is with 4 attributes A, B, C, D, and functional dependencies are AB derives to C, BC derives to D, and A derives to D. Please go for it. Humble request, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? कैंडिडेट की। तो प्लीज गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैंडिडेट की। कंप्यूट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए आपको इसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चेक करो आपके इसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो ए, बी, सी और डी में से आपको सी मिल रहा है, आपको डी मिल रहा है, ई और बी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ए बी क्लोजर कैलकुलेट करके देखो। ए बी क्लोजर में ए बी आएगा और इस ए बी की वजह से सी आएगा, और बी सी की वजह से आपका डी आ रहा है। तो ये भी विल बी और कैंडिडेट की। therefore candidate
हेलो, स्क्रीन इज विजिबल टू यू ना? यस और नो? हेलो, यस सर। और रिकॉर्डिंग बटन ऑन है ना? हाँ सर, ऑन है। या एक्चुअली नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. तो नाउ हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट. So what will be the proper subset of candidate keys? So here we have to go for proper subset of candidate keys. These will be 5 A and B. बाद में सेकंड आपको प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. Go for the computation of prime and non prime attributes. ये और भी आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. और सी और डी आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. और अभी आपको वन बाय वन सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है. फर्स्ट डिपेंडेंसी here my first dependency is AB raised to C. So whether AB is a proper subset? Yes or no? Hello? सर। Yes, sir. AB is not a proper subset. No. अगर ये कंडीशन भी फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसलिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. सेकंड, BC derives to D. I have to check for BC derives to D. Next functional dependency. BC derives to D. So whether BC is a proper subset? No. And that's why this is once again not a partial dependency. Third one is A derives to D. Whether A is a proper subset? Yes. And whether D is a non-prime attribute? Yes. And therefore this is what a partial dependency. तो अगर आपके डेटाबेस में एक भी डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है, if in your database at least one dependency partial dependency है, तो फिर डेटाबेस सेकंड इनफ में नहीं रहेगा. And therefore A derives to D is partial dependency. Therefore database is not in enough. Got it? कितने लोगों ने ओके? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए चैट नहीं देख पा रहा हूँ. तो जितने लोगों का आंसर था कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस इज नॉट इन टू इन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट. समझा बेटा ये प्रॉब्लम आपको? हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ओके. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4. अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये खुद से करेंगे. टू फाइंड गिवन डेटाबेस इज इन टू इन और नॉट. रिलेशन इज गिवन टू यू and now you have to identify given database is in 2NF or not. Solve करो and then post your answer to chat box. I am waiting for your reply. Everybody, I am waiting.
ओके, तो शुभम Kanugia answered the question and Shubham Degoda has answered the question. Do it correctly. फास्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आंसर करेक्ट भी होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी द पेनल्टी ऑफ नेगेटिव मार्किंग. Okay, Amandeep has answered. Nanti, Ishita, Siddhi Ghate, Soham, Tanvi. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही तन्वी आपको? Are you facing any difficulty in this particular topic? Ishita answered the question. Okay, some of you are saying that it is in 2NF and some of you are saying that it is not in 2NF. Whether it is in 2NF or not, so let us solve. So what we have to do? Very first, we have to go for computation of all the candidate keys. Therefore, compute all candidate keys. Very first, we have to compute all candidate keys. अब कितने चेक करते हैं? सबसे पहले तो essential attributes देखते हैं. तो B आपका आ रहा है, C भी आपका आ रहा है, A भी आपका आ रहा है. जो चीज नहीं आ रही है वो है D, इसलिए D essential है. और D प्लस अगर कैलकुलेट करते हैं तो D से ओनली D मिल रहा है. D का अकेले का पावर नहीं कि वो किसी को डिराइव कर सके खुद के अलावा. एंड दैट्स वाई अभी D के साथ में 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. कौन से? एक AD, दूसरा BD और तीसरा CD. ये 3 चीजें हैं. तो आप AD क्लोजर कैलकुलेट करो, फिर BD क्लोजर कैलकुलेट करो और फिर CD क्लोजर कैलकुलेट करो. तो AD क्लोजर कैलकुलेट करेंगे तो AD क्लोजर में AD आएगा और ये की वजह से B और C मिल सकता है, इसलिए AD हमारा एक कैंडिडेट की होगा. BD क्लोजर अगर कैलकुलेट करते तो BD क्लोजर में BD आएगा और B की वजह से ये आ रहा है और ये की वजह से B और C दोनों आ सकते हैं, यानी B भी मेरा कैंडिडेट की रहेगा. तो दिस इज वन कैंडिडेट की, दिस इज अनदर. देन CD क्लोजर कैलकुलेट करो, CD क्लोजर में CD आएगा और C और D मिलके भी किसी को डिराइव नहीं कर पा रहे हैं. तो देयर आर 2 कैंडिडेट कीज, AD एंड BD. तो कैंडिडेट कीज जो रहेंगे वो रहेंगे आपके AD एंड BD. तो जिसका कैंडिडेट की कैलकुलेट करने में गलती हो गया, समझ लो उसका सारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया, आगे का आंसर ही उसका रॉन्ग है. गेटिंग इट? तो कंप्यूट ऑल कैंडिडेट कीज, तो AD एंड BD. तो प्रॉपर सबसेट्स हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. तो हियर proper subsets will be first 5, then A, then D, then B. और कुछ आएगा क्या यहाँ पे? AD के 2 ही बनेंगे, AD और BD के भी 2 बनेंगे, B and D. उसमें से D ऑलरेडी आ चुका है. और प्राइम और नॉन प्राइम अगर हम बनाते हैं तो आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स में आएंगे A, B और D, A, B और D. और नॉन प्राइम में जो आएगा दैट विल बी C.
और इस हिसाब से भी 1 by 1 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम लेते हैं and then we have to check. First functional dependency is A d raised to B. So whether A is a proper subset, yes. B is a non-prime attribute, no. And therefore this is not a partial dependency. Second, A d raised to C. A d raised to C. A is a proper subset, yes. C is a non-prime attribute, yes. A is a proper attribute, proper set, yes. And C is a non-prime attribute, yes. And therefore this is what a partial dependency. And due to this particular dependency, this database will not be in a 2NF. Therefore, here I can declare that not in 2NF. Second NF में नहीं रहेगा. चेक कर लेते थर्ड डिपेंडेंसी क्या था, जरूरत तो नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं. B derives to A. So whether B is a proper subset, yes. And A is a non-prime attribute, no. Therefore, this is not a partial dependency. तो A derives to C इस डिपेंडेंसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस सेकंड एनएफ में नहीं है. तो जितने लोगों का आंसर नॉट इनटू एनएफ था, कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ है ना? Yes, sir. आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग द Yes, sir. थिंग्स और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So this was about how to compute a database is in said to be in a 2NF or not. And now we have to go to next, that is our third normal form. तो अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे. बताइए तो डेटाबेस फर्स्ट NF कब होगा? When database is said to be in first NF, when all the attributes will be atomic. What do you mean by atomic? No multi-valued attribute. कोई भी multi-valued attribute नहीं होना चाहिए. And no composite attribute. ये चीज अगर फॉलो हो रही तो डेटाबेस इज सेड टू बी इन फर्स्ट NF. तो यू गॉट अबाउट फर्स्ट NF? हाँ या ना? Yes, sir. अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्या करना पड़ेगा? अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड रोज. कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड Columns. columns. This is first NF. Now we have to go for second NF. When database is said to be in second NF? Second NF में तब जब no पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी कब? एक्स डिराइव्स टू ये इस तरह का डिपेंडेंसी अगर है तो इसमें दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए. दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कंडीशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए. इसलिए हम यहाँ पे एंड लिखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. राइट हैंड साइड का कंडीशन क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. और ये दोनों कंडीशन फॉलो करने वाला अगर हमारे पास में डिपेंडेंसी रहा तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी. और हमारे डेटाबेस में एक भी डिपेंडेंसी अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो फिर डेटाबेस सेकंड NF में नहीं रहेगा. तो दिस इज अबाउट माय सेकंड नॉर्मल फॉर्म. यहाँ तक क्लियर? हाँ ना? Yes, sir. Now we have to go to third normal form. So now third normal form. What is third normal form? So a table is said to be in 3NF. A table is said to be in a 3NF. Means a database is said to be in 3NF only if it is in first NF. अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट NF सेकंड NF में रहेगा ही रहेगा. सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी x derives to a. For every non trivial dependency x derives to a. X is either super key or a prime attribute. X is either super key or A is a prime attribute.
then only we can say that database is in 3NF. अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड NF को हमने जिस तरीके से पढ़ा और 3NF को जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड NF में बोला था हमने कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, और थर्ड NF में बोल रहे हैं कि हर ट्रिवियल डिपेंडेंसी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमने बात की थी, और यहाँ पे होना चाहिए, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो here we don't want partial dependency and here we want trivial dependency, getting it? इसलिए बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो do not get confused। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा x डिराइव्स टू ये इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए आपका सुपर की। x क्या होना चाहिए? सुपर की। अगर x सुपर की नहीं है तो r, वहां पे एंड था सेकंड NF में, r नहीं है तो ये कैसा होना चाहिए? प्राइम एट्रिब्यूट। अब याद रखना, सेकंड NF में जब हम बात कर रहे थे तो सेकंड NF में राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम बोलते थे, हाँ या ना? अरे सर ना, सेकंड NF में राइट Yes, हैंड sir. साइड में नॉन प्राइम बोलते थे, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एक तो मेरा सुपर की होना चाहिए, नहीं है तो चेक करो राइट हैंड साइड की आपका प्राइम एट्रिब्यूट है क्या, अगर है तो आपका काम चल जाएगा। और इस फॉर्मेट की अगर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो फिर हम डेटाबेस को 3NF में है कहेंगे। तो अगर मेरे पास कोई टेबल दिया है, यानी रिलेशन दिया है ABCD के साथ, और फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 दिया है, तो मैं 1 by 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी लूंगा, फर्स्ट लूंगा, सेकंड लूंगा, थर्ड लूंगा, एंड फॉर फर्स्ट डिपेंडेंसी आई हैव टू चेक, पहले लेफ्ट हैंड साइड को एग्जामिन करेंगे कहीं वो सुपर की तो नहीं है। अगर वो सुपर की नहीं होगा तो फिर हम राइट हैंड साइड के लिए जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर सुपर की है, काम खत्म, कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब है ट्रिवियल डिपेंडेंसी परफेक्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो फिर हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो गया तो वो हमारा ट्रिवियल डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल के मुताबिक रहेगा, एंड देयरफॉर वो थर्ड NF को फॉलो करेगा। तो इसी चीज को अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ देख लेते हैं। तो हियर वी हैव टू गो फॉर वन एग्जांपल। आप ध्यान से ये प्रॉब्लम समझिए एंड काइंडली नोट डाउन आंसर। तो 3NF का डेफिनेशन नोट डाउन किया बेटा आपने, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो 3NF if it is in first NF and for every non-trivial dependency x derives to a, x is either super key or a is a prime attribute. So now we have to go for one example. Example दिया है, one relation is given to you and set of functional dependency में दो functional dependency दिए हुए हैं, a derives to b and b derives to c, and then it is said we have to check whether the given database is in 3NF or not. अब 3NF में है या नहीं है अगर आपको चेक करना है तो फिर से आपको एक काम करना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर सुपर की नहीं होगा तो राइट हैंड साइड फिर से प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं चेक करना पड़ेगा। और प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं अगर आपको चेक करना है तो आपको प्राइम और नॉन प्राइम इस तरह का बाइफर्केशन करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स का, और प्राइम और नॉन प्राइम इस तरह का बाइफर्केशन अगर करना है तो फिर से आपको कैंडिडेट की यहाँ पे भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कैंडिडेट की नहीं बनाओगे तब तक आप प्राइम और नॉन प्राइम इस तरीके से बाइफर्केशन नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर हियर वेरी फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पहले बनाना पड़ेगा कैंडिडेट की। तो हियर यू हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैंडिडेट की। तो कंप्यूट कैंडिडेट की कर सकते हैं, कैंडिडेट की कैलकुलेट करो और मुझे यहीं पे बताओ व्हाट इज कैंडिडेट की। AD। क्या आएगा बेटा कैंडिडेट की? AD। आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है इससे पहले, तो हमारा कैंडिडेट की जो आएगा वो आएगा AD, क्योंकि D इसेंशियल एट्रीब्यूट्स है और ये वैसे भी सबको डिराइव कर रहा है, तो AD से हम सब कुछ मिल जाएगा, तो AD विल बी माय कैंडिडेट की। तो उसके हिसाब से अगर हम प्राइम एंड नॉन प्राइम इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो दिस विल बी द प्राइम एंड दिस विल बी नॉन प्राइम। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा A और D, और नॉन प्राइम में आ जाएगा हमारा B एंड C।
यहाँ तक हो गया AD and BC. Now we have to go for the first functional dependency. पहला functional dependency लो, A derives to B. इसमें क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी में पहले लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन चेक करो, कहीं लेफ्ट हैंड साइड आपका सुपर की तो नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड सुपर की कब होगा? लेफ्ट हैंड साइड सुपर की तब होगा जब A प्लस कैलकुलेट करोगे तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ये क्लोजर कैलकुलेट करो तो बेटा A से A मिलेगा, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी से B मिल जाएगा और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी से C मिलेगा। क्या आपको D मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या A is capable of deriving all the attributes of a table? A is capable of all deriving all the attributes of a table? ये A, B और C No. को derive कर सकता है, D को नहीं कर सकता। And therefore left hand side वाली condition जो होगी, that left hand side condition will be no. तो here there should be no. अब अगर ये नहीं है तो अभी राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा। अब जाइए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या B आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? No, नॉन sir. प्राइम, तो ये भी आपका नो फॉर्म में है। जब दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, एक भी होती थी तो हम बोल सकते थे वो 3NF में है करके, लेकिन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ये वाली डिपेंडेंसी 3NF में है नहीं, और 3NF में अगर नहीं है यानी पूरा का पूरा डेटाबेस 3NF में नहीं है। आर यू गेटिंग इट? हाँ ना? सेम थिंग Yes, sir. हम सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। डिराइव तो कर दिया हमने 3NF में नहीं है करके, सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सा है बेटा? B डिराइव्स टू C। चेक करो तो B क्लोजर कैलकुलेट करो, B क्लोजर कैलकुलेट करोगे वैसे इसेंशियल एट्रीब्यूट आपका D है तो अकेले B से क्या होने वाला है? नथिंग। और इसलिए B से ज्यादा B मिलेगा और B से C मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन भी यहाँ पे नो आएगी। और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन चेक करना है अभी आपको, क्या कहीं आपका राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है? तो राइट हैंड साइड भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए नॉट इन 3NF। यहाँ दोनों के दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके 3NF में नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि whatever the database is given to us that is not in 3NF। यहाँ तक समझा? Yes, Yes, sir. sir. Now go for solving this particular problem. Problem number 5. To find given database is in 3NF or not। यहाँ पे मैंने सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया है, आपको चेक करना है वो 3NF में है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पोस्ट योर आंसर। आराम से सॉल्व करो और आंसर पोस्ट करो, घाई नहीं करो, जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत जल्दी का काम शैतान का होता है। आप है क्या? ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें जल्दी नहीं करना है। सॉरी, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5। देखो मैंने ही शैतान वाला काम कर दिया था। जस्ट ये क्वेश्चन था बेटा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप से कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग लैपटॉप करके लिखेंगे, और जो लोग मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं वो मोबाइल करके लिखेंगे चैट बॉक्स में। लैपटॉप या डेस्कटॉप व्हाटएवर इट में भी।
ओके, आई थिंक लैपटॉप वालों को तो फंड साइज का प्रॉब्लम नहीं होगा। माय क्वेश्चन टू शुभम, जो मोबाइल से कनेक्ट किए हैं, फंड साइज विजिबल है ना, जो भी आपको मोबाइल पे दिख रहा होगा? Yeah, sir, it's extremely visible. ओके बेटा, थैंक यू। Answers are got from Shubham, Ishita, Amandeep. What about others? Okay, अमनदीप आपने ट्राई किया, गुड। अमनदीप कैंडिडेट की बन गया आपसे? यस सर। ओके, गुड बेटा। What about others, those who haven't posted the answers? Shoham, Tanvi, प्रियंका। प्रियंका ने काफी लेट ज्वाइन किया आज। तो ओके, जस्ट लिसन। कुछ लोगों ने आंसर दिया है कि इट इज इन 3NF, और कुछ लोगों का आंसर है कि इट इज नॉट इन 3NF। एंड बेसिकली मुझे लगता है कि आप सबके आंसर करेक्ट आने चाहिए, और फिर भी हम लोगों के आंसर डिफर कर रहे हैं, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैंडिडेट कीज। So here we have to compute कैंडिडेट की। कंप्यूट कैंडिडेट की जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो C और B, C and B, these are the attributes which are derived by some others, but A and D, these are the attributes which are not generated by any other attributes, therefore AD plus कैलकुलेट करेंगे, और AD plus से सिर्फ हमें AD मिल रहा है, AD plus से ओनली AD मिल रहा है। इसका मतलब कैंडिडेट की हमारा यहाँ पे 2 साइज का नहीं रहेगा, तो हमें 3 साइज का कैंडिडेट की बनाना पड़ेगा। तो AD तो रहेगा ही रहेगा। अब AD के साथ किसको जोड़ सकते हैं? एक तो B को जोड़ सकते हैं, या फिर AD के साथ हम C को जोड़ सकते हैं। तो ACD, इस तरीके से हमारे 2 पॉसिबिलिटीज है, और 2 पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी इनका क्लोजर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ADB का क्लोजर अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट ADB, और ये BC को डिराइव कर सकता है, तो ये मेरा एक कैंडिडेट की हो सकता है। और सेकंड ACD क्लोजर हम कैलकुलेट करेंगे तो ACD, तो यहाँ पे AB तो है नहीं, B से C नहीं मिलेगा, और C की वजह से B मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैंडिडेट की जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, एक ABD और एक ACD। तो ABD is one candidate key and ACD is another candidate key, और उस हिसाब से मैं प्राइम और नॉन प्राइम
इस तरीके से बाइफर्केशन अगर करता हूँ प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट करके, तो प्राइम एट्रीब्यूट सब भी आ रहे हैं मेरे ए बी सी डी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में कोई नहीं आएगा, दैट विल बी 5। और अभी हम चेक करते हैं एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को, ए बी डिराइव्स टू सी, बी डिराइव्स टू सी एंड सी डिराइव्स टू बी। ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब देखिए इस पर्टिकुलर इसमें मैं प्रॉपर सबसेट नहीं निकाला। प्रॉपर सबसेट नहीं निकालने का रीजन यहाँ पे ये है कि मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो जब हम यहाँ कंडीशन चेक करते हैं एक्स डिराइव्स टू ए में, तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं क्या वो सुपर की है, नहीं तो फिर हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है क्या। अब जब यहाँ पे पूरे के पूरे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट्स ही है, तो फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए राइट हैंड साइड की कंडीशन आपकी यस आने वाली है, सेकंड वाले इसमें भी राइट हैंड साइड वाली कंडीशन यस आने वाली है, और थर्ड वाले इसमें भी राइट हैंड साइड की कंडीशन यस आने वाली है। एंड दैट्स व्हाई जब मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ही प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो फंक्शनल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए मैं कंडीशन जो चेक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए राइट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू आने वाली है। एंड दैट्स व्हाई ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, चाहे वो ए बी डिराइव्स टू सी हो, बी डिराइव्स टू सी हो या सी डिराइव्स टू बी हो, राइट हैंड साइड वाली कंडीशन फुलफिल करने की वजह से सारे के सारे डिपेंडेंसी ट्रिवियल डिपेंडेंसी 3NF के फॉर्म में रहेंगे। And if all the my functional dependencies are following this particular criteria, therefore I can say that my database is said to be in 3NF. Yes or no? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर जो रहेगा ये रहेगा it is in 3NF. Now next we have to go for next problem. Problem number 6. Find the given database is in 3NF or not. So all of you please go for this. ये database 3NF में है या नहीं आपको चेक करना है, तो please take it, solve it and post your answer to chat box. Carefully solve करो, जल्दी जल्दी मत करो, take your sufficient time and try to solve it correctly. So solve problem number 6 and post your answer to chat box.
So here we got the answer from Soham, Shubham, Kanujia, and Shita. And everybody got the correct answer. Congratulations. What about others? तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैंडिडेट की क्या मिला बेटा आपको? Hello? A, B, C, D. Yes. So whenever you are solving this problem, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हर कोई हर किसी को डिराइव कर सकता है. A से B मिल सकता है, B की वजह से C मिलेगा, यानी A से C मिल सकता है, C से D मिल सकता है, यानी A से सब कुछ मिल सकता है. And that's why here if we will go for computation of candidate keys, तो आपके कैंडिडेट कीज रहेंगे एक तो A या फिर B, C नहीं तो D. और इस पर्टिकुलर वजह से अगर आप प्राइम और नॉन प्राइम इस तरह का अगर बाइफरकेशन अगर आप करोगे तो प्राइम में सब कुछ आ जाएगा, नॉन प्राइम में 5 आएगा. और अपने इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि जैसे ही आपके सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम बन गए, समझ जाना कि राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है B, C, D, A, ये सब प्राइम एट्रीब्यूट वाली कंडीशन फुलफिल करने वाले हैं. और उस वजह से सारे के सारे डिपेंडेंसी गेट्स डायरेक्ट टू ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी 3NF फॉर्म को फुलफिल करेंगे. यानी B is a prime attribute, C is a prime attribute, D is a prime attribute and A is a prime attribute. ये वाली कंडीशन फुलफिल होने वाली है. और जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है ये 3NF में है. तो डेटाबेस इज इन 3NF. ऐसा जितने लोगों का आंसर है दैट आंसर इज करेक्ट. यहाँ तक समझा? हाँ या ना? हेलो? Yes, sir. ओके. तो यहाँ तक अगर आपको समझा तो देन we have next form, that is what the bias code normal form. But prior to bias code normal form, here we have to summarize all the normal form. सबसे पहला फर्स्ट NF, सेकंड NF और थर्ड NF. बताइए बेटा थर्ड NF पे क्या होता है? X डिराइव टू ये वाली ट्रिवियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जिसमें X कैसा होना चाहिए आपका? एक तो सुपर की या फिर और कंडीशन होता है. एक ऐसा होना चाहिए आपका Prime attribute. प्राइम एट्रीब्यूट. दिस इज द थिंग. सेकंड नॉर्मल फॉर्म है आपका, जिसमें हमने बोला था X डिराइव्स टू ये आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. और पार्शियल डिपेंडेंसी में बोला था X जो होगा ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए, और ये जो है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. और ये यहाँ पे एंड कंडीशन होता है, जब दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगे तब उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं. और हमारे डेटाबेस में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. और थर्ड जो चीज होती है दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बोला था हमारा डेटाबेस का हर एक एट्रीब्यूट जो है वो कंपोसाइट एंड मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब नो कंपोसाइट एंड नो मल्टी वैल्यूड होना चाहिए. इसी को हमने बोला था एटॉमिक एट्रीब्यूट. तो दिस इज अबाउट द समराइजेशन ऑफ ऑल थ्री नॉर्मल फॉर्म. डेटाबेस अगर 3NF में यानी बाय डिफॉल्ट वो 2NF और 1NF में होगा.
डेटाबेस अगर 2NF में यानी बाय डिफॉल्ट वो 1NF में होगा. So these are the things. And now with this summarization, we are moving towards for fourth normal form, which is called as Bayes code normal form. यानी देखिए fourth normal form अलग है और हमारा fourth normal form यानी हमारे हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से अभी नेक्स्ट, दैट्स वाई BCNF. तो नॉर्मल फॉर्म में लेवल देखो, सबसे पहले फर्स्ट NF, नेक्स्ट लेवल सेकंड NF, थर्ड लेवल 3NF और चौथा लेवल BCNF. इसके बाद में फिर फोर्थ NF होता है, लेकिन फोर्थ NF हमारे सिलेबस में नहीं है अप टू BCNF. तो हमारे लिए हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा होगा बेटा हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट विल बी द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म? अरे हमारे हिसाब से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा होगा? BCN. और लोवेस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा होगा? फर्स्ट NF. 1NF. ये 1NF. तो अगर आपको बोला कि कोई एक टेबल दिया हुआ है या डेटाबेस दिया है और बोला है कि फाइंड आउट इट्स हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, तो आप फर्स्ट NF से चेक करना स्टार्ट करोगे या BCNF से स्टार्ट करोगे? यू हैव टू स्टार्ट विद BCNF. Directly BCN. पहले BCNF में नहीं होगा तो फिर थर्ड NF के लिए जाएंगे, थर्ड NF में नहीं होगा तो फिर 2NF के लिए जाएंगे, इस तरीके से. तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के लिए. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म? तो हियर वी हैव डेफिनेशन. For every non-trivial dependency, a table is said to be in BCNF if it is in third NF, and second, for every non-trivial dependency, X derives to A, X is a super key. तो देखिए डेटाबेस BCNF में होने के लिए थर्ड NF में होना जरूरी है, और अगर थर्ड NF में है तो फिर हमें एक एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ता है कि फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी X derives to A, जहाँ पे X हमारा सुपर की होना चाहिए. अब थोड़ा ध्यान दो, अभी 3NF की डेफिनेशन क्या थी बेटा? 3NF की डेफिनेशन थी X derives to A. इसमें X जो है ये तो एक तो सुपर की होना चाहिए, या फिर A जो है ये क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. हाँ या ना? अरे बराबर है. Yes, sir. तो मेरे पास सपोज ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी, सपोज ये डिराइव्स टू बी ये एक डिपेंडेंसी होगा और C डिराइव्स टू D ये एक डिपेंडेंसी होगा. तो इसमें से फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी जो है, जिसमें ये इस वजह से 3NF में है ऐसा होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन उसकी ये सारे होंगे. लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ये से, इसका मतलब क्या है? ये जो है आपका कहीं ना कहीं सुपर की होगा, और ये सुपर की होने की वजह से वो 3NF में जा रहा होगा. सेकंड, C डिराइव्स टू D, इसमें हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली कंडीशन शायद नो आ रही है, लेकिन राइट हैंड साइड वाली कंडीशन यस आ रही है. तो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन क्या थी बेटा? Prime attribute. D जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. तो D जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट है, इसलिए ये 3NF में था. तो बेसिकली X डिराइव्स टू ये डिपेंडेंसी अगर मेरे पास दी हुई है, तो ये डिपेंडेंसी 3NF में पार्टिसिपेट तीन वजह से कर सकती है. एक तो वो लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन फुलफिल कर रहा है उस वजह से, या फिर राइट हैंड साइड का कंडीशन फुलफिल कर रहा है उस वजह से, या फिर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा उस वजह से. गेटिंग इट? अब BCNF क्या बोलता है? बहुत स्ट्रिक्टली है. BCNF बोल रहा है कि मुझे एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. वो क्या? X यानी लेफ्ट हैंड साइड जो ये सुपर की होना चाहिए. राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं वो मैं नहीं जानता, वो नहीं चाहिए मुझे. ये राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होने की वजह से वो 3NF में जरूर हो सकता है, लेकिन अभी उसके ऊपर की कंडीशन नहीं है. उसके ऊपर की कंडीशन क्या है? राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. ये वाली कंडीशन को ये फेल कर रहा है. ये बोल रहा है नहीं मैं सेकंड वाली कंडीशन नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन. कौन सा? अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो फिर वो BCNF में है. यहाँ तक समझा? लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो वो फिर BCNF में. तो सीधा सीधा ध्यान रखो, अगर आपको कोई डेटाबेस दिया है और उस पर्टिकुलर डेटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है, कौन सा? X डिराइव्स टू A, Y डिराइव्स टू B, Z डिराइव्स टू C, इस तरह का डिपेंडेंसी का सेट दिया है. पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी ले लो, कौन सा है? X डिराइव्स टू A. चेक करो X सुपर की है क्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है क्या. अगर है तो फिर वो BCNF में है. BCNF का डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर दिया है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए.
अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है इसका मतलब वो BCNF में है। समझा? हाँ या ना? Yes, sir. तो मुझे बताइए BCNF और 3NF, BCNF और 3NF इनमें ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन सा है? विच वन इज स्ट्रिक्टलियर? BCNF. BCNF, क्योंकि 3NF में अगर x डिराइव टू ये कंडीशन है, इसमें अगर x सुपर की नहीं भी होगा तो भी ये 3NF में रह सकता था। क्यों? क्योंकि अगर a मेरा अगर प्राइम एट्रीब्यूट होगा तो। लेकिन BCNF वो नहीं बोलता, भैया हमको हर हाल में x यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सुपर की होना मांगता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है इसका मतलब वो BCNF है। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ BCNF। तो इसी हिसाब से मैं ये यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। Here we have one example. तो वहां पे हमने देखा था कि BCNF is stricter than 3NF. तो here we have one example. एक रिलेशन दिया है और इस रिलेशन में हमारे पास सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ये B derives to C and C derives to D. और अभी बोला है चेक करो ये डेटाबेस BCNF में है या नहीं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप BCNF में है या नहीं? हाँ ना? Yes, sir. करो तो बेटा जल्दी, BCNF में है या नहीं ये फाइंड आउट करो। Check for it if it is in BCNF or not. So I'm saying no. Ishita also saying not in BCNF. Okay, Subham and Ishita. So let us solve this. So very first, as far as given problem is concerned, here we have to go for computation of candidate key. But if you want to check whether the given database is in BCNF or not, there is no need to go for the computation of candidate key at all. तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी लेना है AB derives to C और इसमें सिंपली चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर फाइंड आउट कर लो और लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर क्या मिलता है वो चेक करो। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर क्या है, AB प्लस derives to AB एंड ये B से आपको मिल सकता है C और C से आपको मिल सकता है D। इसका मतलब पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो BCNF में है। This is according to the BCNF. And now we are going for second functional dependency C derives to D. तो यहाँ पे C क्लोजर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो C क्लोजर से C मिलेगा और C से D मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। तो क्या ये पर्टिकुलर सेकंड वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी C derives to D ये आपका सुपर की होगा क्या? नो, C से हम ज्यादा से ज्यादा C और D जनरेट कर सकते हैं and that's why here C derives to D, this particular functional dependency will violate the condition or constraints of BCNF, therefore not in BCNF. और जैसे कि एक हमारा BCNF में और दूसरा BCNF में नहीं है, therefore हम ये बोल सकते हैं relation R is not in BCNF, ये BCNF में नहीं है। क्या आप चेक कर सकते हैं 3NF में है क्या? Please check for it whether it is in 3NF or not. आपको पहले कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी BCNF में है नहीं वो 3NF में होगा ही होगा। You simply you have to check for second C derives to D, क्या ये 3NF का कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? तो 3NF का कंडीशन क्या होता है C derives to D में? एक तो C आपका सुपर की होना चाहिए जो कि नहीं है, तो आपको D चेक करना पड़ेगा D कहीं आपका प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं। तो D प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना पड़ेगा।
कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं तो सी और डी डिराइव होने वाले एट्रीब्यूट है, लेकिन ए और बी डिराइव होने वाले एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये भी प्लस अगर आप कैलकुलेट करते तो ये भी प्लस से आपको ए बी सी और डी सब कुछ मिल रहा है। इसका मतलब आपका कैंडिडेट की जो होगा वो ये भी होगा, तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट ये और बी होगा और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी और डी होगा। गॉट इट? व्हाट इज योर प्राइम एट्रीब्यूट? प्राइम एट्रीब्यूट इज योर ए एंड बी। व्हाट इज योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज सी एंड डी। तो डी मेरा प्राइम होना चाहिए था, लेकिन डी प्राइम है क्या? नहीं है। डी कैसा है? नॉन प्राइम है। इस वजह से ये 3NF में भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ या ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज व्हाट अबाउट द whether database is in 3NF or not। तो आपको चारों के चारों नॉर्मल फॉर्म समझ में आए? हाँ ना? Yes, sir. ओके, तो नाउ रिलेटेड टू दिस आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, तो व्हाट इज हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म और गेट वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे दैट वी विल कवर इन टुमारोज क्लास। तो कल की क्लास से हम ये हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म वाले प्रॉब्लम्स और गेट वाले क्वेश्चंस के लिए हम कल जाएंगे। तो फॉर टुडे इज कंसर्न वी हैव टू स्टॉप हियर।